20-minute half each half, and that will be the standard play as in the men's category. And just to give you a reminder, now Pro Kabaddi rules have become the universal rules, so they will be doing the 30-second clock. विक्रांत रेडर हैं जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, बागपत के रहने वाले हैं, ये जर्सी नंबर 5। और बागपत वो एरिया है जहां से नितिन तोमर आते हैं। बागपत वो एरिया है जिसने देश को बहुत बड़े बड़े पहलवान दिए हैं और अब कबड्डी प्लेयर्स की भी एक फहरिस्त बनने लगी है। Certainly a lot to look forward to for UP, because they would be hoping to make a mark in the previous contest in the same group. Chandigarh had a narrow win over Delhi, and this time 2 points picked up with a low trade by Sushil. Went in low at the defenders, and the defenders went all over him. That's where you see the dubki coming perfect. और डुबकी चेन के नीचे से नहीं आई रवि, राइट कॉर्नर के एक हाथ के नीचे से सुशील ने डुबकी लगाई। हरियाणा को 2-0 की लीड मिल गई है। अब यूपी के पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको वीवो प्रो कबड्डी के मैट का और टीम्स का अनुभव है, लेकिन हरियाणा के पास कबड्डी की विरासत है। ये मैच बड़ा ही रोचक होने वाला है। और जैसा रवि ने बताया, वीवो प्रो कबड्डी के सारे रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। मैट भी वही है 13x10 का, जो सीनियर लेवल पर या वीवो प्रो कबड्डी में जिसका इस्तेमाल होता है। 30-second raid clock applicable here for each raid. Third raid after 2 empty raids becomes a do or die raid. Bonus, and the balk line rules remain absolutely the same, unchanged. बस सिर्फ बोनस लाइन का कलर हमने चेंज कर दिया, ब्लैक से येलो कर दिया। रोहित नरवाल इस समय रेड में थे और एक रनिंग हैंड टच करके आए हैं। अंपायर आरती बारी का इशारा, हरियाणा 3-0 से आगे। Well, players need to be very careful where they exit. The umpires are very, very strict about it. But Haryana has made a start. So this is a do or die raid for UP now. Trouble brewing for the men from Uttar Pradesh. विक्रांत कैप्टन ने खुद जिम्मा उठाया है डू और डाई रेड करने का। जैसे हमने देखा कि अजय ठाकुर किया करते थे तेलुगु टाइटंस के लिए, रिशांक यूपी के लिए किया करते थे, वही इस यूपी के कैप्टन ने किया। पहला पॉइंट और एक नहीं दो, बोनस भी, टच पॉइंट भी। Well, good evasive action there from Vikrant. He saw the defender coming, got the bonus, and then as he saw the defender coming after the bonus, he just evaded him very, very cleverly to pick up the bonus as well as the point. So with a single raid, UP have made a comeback. 2 points, just 1 point lead for Haryana as Sushil comes into raid. सुशील, जैसे मैंने पहले बताया, जसवीर सिंह के गांव से हैं जो पानीपत के पास है, बुढ़श्याम। तो बहुत बड़ी विरासत को इन्होंने आगे बढ़ाना है और बिल्कुल कामयाबी मिली। लगातार दूसरी रेड है सुशील की, दोनों बार रनिंग हैंड टच किया, दोनों बार राइट कॉर्नर को अपना शिकार बनाया। Nitin Pawar it was who was doing duty as the right corner, having moved there from the right cover position, which is his regular position, and could not get back in time. Covers are usually a little lethargic in getting back, not as swift as the corners. विक्रांत फिर से रेड में है। लगातार यूपी के कैप्टन विक्रांत रेड कर रहे हैं और ये एक रनिंग किक लगाई है मंजीत छिल्लर की याद दिलवादी रवि। Well, a side kick there and beautifully executed on the thigh of Ankit. Ankit didn't know where to go. Raider slightly slow to react. There you see the side kick on the thigh. Almost a football kick there. यूपी के 3 पॉइंट हैं, तीनों के तीनों उनके कैप्टन विक्रांत लाए हैं। और हरियाणा जिनके पास 4-0 की लीड थी, अब एक ही पॉइंट की लीड एंजॉय करते हुए लीड बढ़ेगी। रनिंग हैंड टच बड़ी खूबसूरती से आया रोहित नरवाल की तरफ से। Good use of the long reach. Saw the corner within range and immediately lunged ahead to get the touch. Corner still fuming. और ये है मोहित बाल्यान जो इस बार वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 में यू मुंबा के स्क्वाड में थे। पहली रेड, 2 कामयाबियां मिली हैं मोहित बाल्यान को। 2 points UP. Very smart work there. Got a touch on the left corner. There you see the ankle hold failing and then got the cover on the way back. 4-0 से हरियाणा आगे था। यूपी ने 5-5 की बराबरी कर ली है। पता चलता है कि कितनी मजबूत टीम है उत्तर प्रदेश की। And once again, the player had landed outside according to the umpire Aarti Bari. So there, a bit of a disappointment there for Haryana.
The hand must touch the area inside the court before the body touches any part of the court outside the lines. विक्रांत फिर से रेड में है और अभी हम यूपी की बात कर रहे थे। वीवो प्रो कबड्डी के कुछ बड़े बड़े सितारे इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। राहुल चौधरी उनमें सबसे बड़ा नाम है, नितिन तोमर एक बहुत बड़ा नाम है उनमें, रोहित बालियान है, संजीव बालियान जो वीवो प्रो कबड्डी में आपको याद होगा पटना पायरेट्स के कोच थे, एक बहुत बड़े लेजेंड माने जाते हैं भारतीय कबड्डी के, वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। Well, UP certainly has a lot of sports legacy, starting from the legendary hockey Dhyan Chand. दत्ता ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, जोड़ी को कौन भूल सकता है रवि? Well, certainly. So UP's got a lot to live up to, but Haryana's fast catching up. Young state of the independent India, and this time look at that block. What a pillar there. Shubham Kumar, the left cover, just stood there like a rock. Single-handed block. Don't see that very often. और रवि ये शॉट या लो ब्लॉक नहीं था, एकदम खड़े खड़े अंदाज में शुभम ने जो ब्लॉक किया है। यूपी की जबरदस्त वापसी है, 4 पॉइंट से पिछड़ने के बाद 2 पॉइंट की लीड, और यहां सुपर टैकल सिचुएशन में आकाश नयन रेडर हैं। Pressure absolutely on Haryana, have lost the early running advantage that they had, and UP have come back strongly, thanks in a large part to their captain Vikrant, who kept chipping away on the lead, and then 7-5 the lead for UP. An empty raid, another super tackle opportunity. It's a do or die raid, so something's got to give, Sunil. रेडर ने पॉइंट लिया तो ठीक, अगर आउट हुआ तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे हरियाणा को और स्कोर बराबर हो जाएगा, लेकिन बड़े आराम से लेफ्ट कॉर्नर को विक्रांत ने हैंड टच किया, अकेले दम पर विक्रांत अपनी टीम को लीड में ले आए हैं। Well, that's what the leadership quality is. When the team is under pressure, you perform and you pull the log out of the fire. अंकित सांगवान इस समय रेड में हैं, जो कि आदमपुर से हैं। अंकित सांगवान के नाम से आशीष सांगवान की याद आती है, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। Sangwans too have a big legacy, and this time the player is out. The raider could not touch the colored area before his body touched the court outside. Good dash there from the UP defenders. Now last man standing. Haryana have given in, and an all out has been inflicted on Haryana within 2.5 minutes. रवि 2 रेडर मिड लाइन पर थे, अभी अंपायर और रेफरी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या डबल एंट्री तो नहीं हुई। यूपी की टीम हरियाणा को ऑल आउट देने के बहुत करीब है। अंपायर रेफरी में चर्चा हो गई है और यूपी के लिए ऑल इज वेल, हरियाणा ऑल आउट। क्या जबरदस्त वापसी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। One all out inflicted by Uttar Pradesh within 3 minutes of the action beginning, and this is when Haryana took the initial lead with a 4-0 advantage. यानी 4-0 का जब स्कोर था, उसके बाद हरियाणा ने 1 पॉइंट लिया है और उसके बाद से यूपी ने लगातार 12 पॉइंट लिए हैं। ये दमदार वापसी है उत्तर प्रदेश की, और इस वापसी के सेना नायक, टीम के नायक विक्रांत रहे हैं। Certainly kept chipping away, and this time another block attempted, but did not work. Nitin Pawar a little late, little too close to the center line with his block attempt there. Just followed the raider and was too close to the center line to prevent the raider from going over. रेड में आकाश नयन आए हैं, जो कि बागपत के रहने वाले हैं। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बागपत और मुजफ्फरनगर एरिया से हैं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग 7 है, सारी की सारी वो टीम वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। Well, certainly a lot to look forward to, because Western UP and Haryana have a lot in common, including very similar languages spoken. ये दोनों टीम्स लीग स्टेज का पहला मैच खेल रही हैं। 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं, तो हर टीम अपने ग्रुप में बाकी बची हुई 3 टीमों से एक बार खेलेगी। उसके बाद 2 टॉप टीम्स हर ग्रुप से अगले दौर में यानी कि सेमीफाइनल में जाएंगी। And just to give you an idea, in Pool A, where we are watching the action, Haryana and UP have Chandigarh and Delhi, and Chandigarh has defeated Delhi 37-35 earlier in the day. In Pool B,
Tamil Nadu defeated Kerala with a Ready, massive set, 50-26 UP, verdict, jersey number and 11 Maharashtra and Punjab will be in action just after this game. तो रवि ने दोनों ग्रुप्स अंडर 21 बॉयज का लेखा जोखा दे दिया है। तो इस बार चूंकि ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, यहाँ अंडर 17 की अलग कैटेगरी है, अंडर 21 की अलग कैटेगरी है। सुशील इस समय हरियाणा के लिए रेड में है और सुशील बुड श्याम के हैं, जसवीर के काम के हैं, आउट, बाहर बेंच पर जाना पड़ेगा फिलहाल। यूपी का डिफेंस रवि कमाल कर रहा है। Full marks to Shubham Kumar there. Just chased the Raider down. Chased him down, and there you see Shubham Kumar coming from behind. The Raider had absolutely no clue, and Shubham Kumar made a very brave dash to keep him down in a wrestling hold. और रेसलिंग में कम से कम 2 पॉइंट मिलते टेक डाउन के, यहाँ एक ही मिला है। आकाश नैन लेफ्ट रेडर हैं, विक्रांत राइट रेडर हैं, तो दोनों की लेफ्ट राइट की जोड़ी चल रही है। And another touch point claimed by Akash Ready, Nain. set, UP 1 point, well UP. on their Jersey way number 10 out. to a crushing win, because Haryana is just not able to get their defense organized. That's been the problem, while UP defense has been marauding. बोनस ऑन है, यहाँ ब्लैक की जगह येलो लाइन अगर आप देखेंगे, हमने लाइन का रंग बदला है लेकिन रूल वही है, रूल नहीं बदला। ब्लैक लाइन की जगह येलो लाइन है, उसको पार कीजिए एक पैर से, दूसरा हवा में हो, 6 या 7 डिफेंडर्स के चलते, तो वहां बोनस का 1 पॉइंट मिलता है। और 10-9 की आपने आवाज सुन ली है, यानी कि 30 सेकंड रेड का रूल यहां भी एप्लीकेबल है। और UP coach Kiranpal. यूपी के कोच किरणपाल, जैसा रवि ने बताया, 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स में ये भारत के लिए खेले थे, गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं। फिलहाल उनके कैप्टन को बाहर जाना पड़ेगा, पहली बार आउट हुए हैं विक्रांत। Daring defense there by Sahil, going for the knee hold, double knee hold, and there you see bringing down Vikrant with a lot of power and determination. Daring. विक्रांत आउट होने से पहले 5 पॉइंट ले चुके हैं। हरियाणा की तरफ से प्रतीक रेड कर रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये प्लेयर नंबर 11। उज्जवल नागर लेफ्ट रेडर हैं, गौतम बुद्ध नगर से संबंध रखते हैं, ज्यादा इनको रेड करते देखा नहीं है। पहली ही रेड में क्या सुपर रेड है ये, 2 पॉइंट को कंफर्म। नंबर 11 अंपायर रेफरी आपस में चर्चा कर रहे हैं, 2 ही मिलेंगे, सुपर रेड नहीं होगी। Well, two points is all he gets, but what a turn for the escape. Just turned his body, and then you see that hand lunge forward over the center line. Great escape there from Ujjwal Nagar. Looked like a 3-pointer, but I think Ujjwal Nagar will feel a little disappointed. यहाँ डुओ डाई रेड आ चुकी है, लगातार 2 रेड में पॉइंट ना मिले तो तीसरी डुओ डाई रेड बन जाती है। और डिफेंस की चेन, राइट कॉर्नर, राइट एंड, जबरदस्त प्रदर्शन यूपी के डिफेंस का। Full marks to Sanit in shirt number 12. Just held his ground as the Raider came at him. Sanit there and then gets a grip. Shirt number 12 will get the point, but what a defense there. Vikrant now. Another super tackle situation for Haryana, facing the second one in a space of 9 minutes. वहीं हरियाणा के पास सुपर टैकल का मौका है, यूपी के पास ऑल आउट देने का मौका है। डुओ डाई रेड नहीं है तो जरूरी नहीं कुछ हो ही हो। विक्रांत एकदम दृढ़ निश्चय लेकर आए हैं, दूसरी बार ऑल आउट कर दिया। 2+2 यूपी ने हरियाणा को एक ही हाफ में 14 मिनट के अंदर अंदर। The referee and the umpire have a can't break. Raider out of bounds. Super tackle awarded to Haryana. Out of bounds. So Raider stepped out of the court before contact, and that's been ruled out, so the tackles didn't matter. 2 points awarded to Haryana. हरियाणा को लाइफ लाइन मिल गई है, एक रिवाइवल मिला है और 2 कीमती पॉइंट मिले हैं। सुशील इस समय रेड में है, पॉइंट ले ना ले, आउट नहीं होना है। हरियाणा को जो एक मौका मिला है रवि मैच में आने का, इसका फायदा उठाना चाहिए। Well, they have been given a lifeline. There you see the super, but his heel before contact had gone into the lobby. That's where the left heel went. सुपर टैकल का मौका है, यहां सोलो टैकल करना बड़ा मुश्किल था। राहुल ने वो
जुर्रत की और खामियाजा भुगता। Jersey number 8. Ujjwal Nagar seems to be an escape artist, a Houdini. He always turns the body. There you see, once again, used the jump and then slid across the center line. बिल्कुल, उज्ज्वल नागर अपनी पहली रेड में 2 पॉइंट लेकर आए थे रवि। इस बार उनको कीमती 1 पॉइंट मिला है। यूपी की लीड 10 पॉइंट की है और 5 मिनट का खेल पहले हाफ में अभी शेष है। More important than that, it was the 3 points. 3 opportunity to 3 get points. Vikrant back, and this Two, time two, 2 also. Come. points. 3 points. 3 points. Jersey number 2. 2 points there for 2, 5, 12. 3 points. Ronak. And now, 3 3 points. points, Haryana. It's a super raid. The referees and the umpires took their time to count, and there Substitution. is a super raid now. Done. There you see 1, 2, and as he touched, he's claimed that he'd already touched one player. That's the lunge touch, and then the defense got 2 more. दोनों टीम्स के कैप्टन्स ने काम किया है। ये कैप्टन थे हरियाणा के सुशील, जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि जो जसवीर के ही गांव के रहने वाले हैं, और बिल्कुल जसवीर वाला काम उन्होंने किया। आपको याद होगा जसवीर ने सीजन 5 में एक सुपर डुपर रेड की थी, वही काम हरियाणा के कैप्टन ने भी किया है। Now Ujjwal Nagar keeps the Haryana defense. There you see the coach. किरण पाल सिंह यूपी के कोच, जैसा हमने बताया 1998 एशियन गेम्स में भारत के साथ ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो अंडर 21 यूपी की टीम के साथ अगर इतना अनुभवी एक खिलाड़ी और कोच है तो उनका प्रदर्शन देख के समझ में आता है। That shows how seriously UP takes their kabaddi, how seriously they take their kabaddi. और अभी आपको याद होगा बेंगलोर नेशनल्स हमने एक साथ देखे थे, जहां संजय दादा भी थे, पदमजीत शेरावत भी थे। यूपी जीती थी वहां पर नेशनल्स, और राहुल चौधरी टीम के कैप्टन थे। Bijnor star Rahul Chaudhary. और पिछले साल की चैंपियन महाराष्ट्र है, इस बार नेशनल्स का इंतजार है। रेलवेज की टीम सुना है, राकेश कुमार बता रहे थे, बड़ी मजबूत है। सर्विसेज की भी, महाराष्ट्र डिफेंडिंग चैंपियन है, मजा आएगा देखने में। Well, the services in the railways have always had very strong contingents, but lately other states teams have started making a mark. Don't forget, half of the Indian team comes from services and railways. क्या ये भी सुपर रेड होगी या डिफेंडर क्रॉस करके मिड लाइन को? बिल्कुल सुपर रेड है ये। नंबर 10, नंबर 6, 11, 10. यूपी ने हरियाणा की सुपर रेड का जवाब सुपर रेड से ही दिया है। यूपी नंबर 10. Just when Haryana looked like they were coming back into the match, a defensive lapse allows UP to take the bound up, and there you see, missed ankle hold just did not allow the defenders any kind of control on the radar, and everything went wrong after that. रेड एसएफ बोनस प्लस पॉइंट यहाँ बोनस और एक टच पॉइंट लेकर आए हैं हरियाणा के लिए उनके कैप्टन सुशील। सुशील वो खिलाड़ी है जिसने हरियाणा को 7 रेड पॉइंट दिलवाए हैं, टोटल 12 में से। रवि, We are under 2 minutes remaining in the first half. It's been a really strong fight and a very strong performance by the UP defense. Has really, there you see Haryana 11 rate points, but just 1 tackle point, and that is where it has hurt them. Their defense has just not been up to the mark today. UP on the other hand has made their defensive tackles count. और जो 2 अदर के पॉइंट हमने हरियाणा के नाम देखे, वो जो सुपर टैकल रेडर अपने आप आउट हुए थे, वो सेल्फ आउट के 2 पॉइंट मिले, वो टैकल पॉइंट भी हरियाणा के खाते में नहीं गए। लेकिन आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया रवि कि यूपी की टीम की लीड का बहुत बड़ा कारण अगर उनके कैप्टन है तो उनका डिफेंस भी है, स्पेशली नंबर 12 राइट कॉर्नर जो चेन बनाकर खेले हैं। Sushil has got 9 of those 11 raid points alone, so he's not getting much support from his teammates. And once again, Ujjwal Nagar, the escape artist, faces up super tackle opportunity. UP has been led in their scoring by shirt number 5, Vikrant, their captain. Ujjwal Nagar limping a bit there, but quite happy to come back empty-handed. सुशील कैप्टन हरियाणा के 9 रेड पॉइंट ले चुके हैं, टीम के 14 पॉइंट हैं। जो हाल हरियाणा स्टीलर्स का वीवो प्रो कबड्डी में था, वो हरियाणा के अंडर 21 टीम का भी है। एक खिलाड़ी चल रहा है और एक खिलाड़ी क्या आपको मैच जितवा सकता है, इंतजार करना पड़ेगा। Well, unless you get a 30 or a 40 point game, you can't pull it off. And here's another super tackle opportunity for Haryana. It's the second one they've got in consecutive raids. Vikrant has got 5
Raid points. Not been picking up big time, but it's been picking up regularly. That's been the key. 2 points for a successful tackle with 3 or less raiders, and this time Haryana took their time and 2 defenders off. 1 defender 1 gone. point Self UP. out. ये किस्मत है, ये कबड्डी का खेल इतना बड़ा लेवलर है। यहाँ डिफेंडर बैकलाइन से बाहर निकल गए थे, पूरे का पूरा पैर स्ट्रगल से पहले, तो वो सुपर टैकल भी कामयाब नहीं हुआ। इससे पहले जो एक सुपर टैकल कामयाब हुआ था, वहां रेडर को सेल्फ आउट दे दिया गया था जब ऑल आउट की सिचुएशन थी। तो दोनों टीम सुपर टैकल में 2-2 पॉइंट किस्मत के सहारे लेकर आई हैं। Well, it was a do or die raid for Haryana, and we have half time 23-15. A bonus awarded to Haryana, so their score will advance, but Super 10 for Sushil in the first half itself. Still, his team way behind in the overall score. 8 points in the areas against UP. Confirmation of the halftime score 23-15. 8 points the lead for Uttar Pradesh. And हैं। इस पहले 20 मिनट के हाफ में एक सुपर 10 लगा है। स्कोर देखकर लगेगा कि यूपी ने लगाया है, जी नहीं, हरियाणा के कैप्टन सुपर 10 लगा चुके हैं, जो रेड में है सुशील, और पहली ही रेड डू और डाई भी है उनके लिए। he is primarily a defender. 1 shot of a high five for him. पॉइंट लेना पड़ेगा और यूपी का डिफेंस उनको बोनस पॉइंट टच नहीं कर रहा, तो एक बोनस के साथ कम से कम खुद को आउट होने से बचाया है। 11 का शगुन डाल लिया है रवि, लेकिन यहां ऑल आउट का भी सामना कर रही है उनकी टीम। Well, Vikrant there attacking 1 point UP. Sushil without any. Sushil just not happy, tried to get it from the top on the shoulders. Ella Fazal Atrachali in PKL, but didn't work out. Didn't have the power or the timing. फजल तो खैर रेसलिंग करके आए हैं ईरान से, और यहां पीठ दिखाई, क्या कमाल का वेस्ट होल्ड, कॉम्बिनेशन टैकल। बोनस पॉइंट हरियाणा। बोनस जरूर मिला है हरियाणा को, लेकिन तीसरी बार ऑल आउट। Well, it doesn't augur too well for Haryana at the moment, because third time all out and the lead will just keep ballooning. Look at the waist hold coming from the left corner. What a grip there. Rahul. आकाश नैन लेफ्ट रेडर हैं, और हरियाणा को ऑल आउट देने के बाद जो पहली रेड की उसमें भी एक रनिंग हैंड टच यकीनी तौर पे हासिल कर लिया है उन्होंने। Red set 1 point UP. The Jersey number 11 performance out. of the defense gives confidence to the Raiders that even if they go in and make a mistake, they can all. हरियाणा के लिए फिर से कैप्टन सुशील ही रेड कर रहे हैं। 2 पॉइंट का दावा उनका है। रनिंग हैंड टच पहले हुआ नहीं राइट कवर को, लेकिन राइट कॉर्नर जो आए उनको ब्लॉक करने के लिए उनके चंगुल से एस्केप करके निकल गए। अकेला चना रवि क्या पहाड़ फोड़ सकता है। Well, Sanit was in position to prevent him going over the center, and now UP captain Vikrant coming in. विक्रांत ने शुरू में लगातार 5 रेड पॉइंट लिए थे, उसके बाद डिफेंस में आउट हुए, फिर एक बार रेडिंग में आउट हुए, तो इनकी स्कोरिंग में जरूर विराम लगा है रवि, लेकिन टीम के प्रदर्शन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। Well, it is a team game and everybody's score counts, and this time Haryana defend as a team. Good low grip there by left cover Pratik, I beg your pardon, Pratik went low at him and got him under the armpits. और प्रतीक काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं इस उम्र के बावजूद, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और रेडिंग का पूरा जिम्मा तो जैसे सुशील नंबर 2 ने खुद ही उठा रखा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है 2-1-2, जो सेंटर का खिलाड़ी है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लेफ्ट कवर की तरह खड़े थे और उसी का नुकसान हुआ उनको। 1 point हरियाणा। Bit casual there from Shubham Kumar of UP and pays the penalty, and now UP coming under pressure early in the second half. 8 पॉइंट की लीड रह गई है यूपी की, जो पहले हाफ के समय 7 की थी, परंतु 10 पॉइंट के आसपास लीड लगातार मेंटेन की थी। एंकल होल्ड से छूटे, लेकिन पूरी की पूरी राइट डिफेंस ने सपोर्ट दिया। हरियाणा के डिफेंस ने पहले हाफ की असफलता भुलानी शुरू कर दी है।
Kulvinder Dalal it was with the ankle hold, missed the grip but did enough to impede the progress, and then the rest of the team pounced on him like a ton of bricks. यहां सुपर टैकल ऑन है और यूपी को हमने अक्सर देखा नहीं है कि सुपर टैकल की सिचुएशन तक वो उतरे हों। हरियाणा लगातार 2-3 के डिफेंस से खेला है, परंतु यूपी के लिए सबसे पहली चुनौती ऑल आउट बचाना, और ये ऑल आउट, 5 पॉइंट मिलेंगे। हरियाणा 3 बार ऑल आउट हुआ है और यूपी को 1 बार ऑल आउट दे दिया है। जबरदस्त वापसी ये हरियाणा की। Well, the scoreboard will tell it all. Low tackle attempted, but the team's not coming quick enough in assistance, and there the fingers crawling over the center line, good enough to pick up 5 points. And now, despite the 2 all-outs inflicted on Haryana by UP in the first half, difference is only 2. हाफ टाइम के बाद से 11 पॉइंट ले चुके हैं हरियाणा, और यूपी को सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं। इसी से पता चलता है कि दूसरे हाफ की कहानी कितनी विपरीत है। यूपी ने वो काम किया है, लीड लेकर जैसे पिछड़े हैं, जैसे गुजरात फॉर्च्यून जॉयंट्स पिछड़ते थे, और पिछड़ने के बावजूद जैसे बेंगलुरु बुल्स ने लगातार वापसी की है, वो हरियाणा कर रहा है। On the attack, Rohit trying to get into the center, but not really successful. Ujjwal Nagar now. उज्जवल नागर की पहली रेड हमें याद थी, 2 पॉइंट लेकर आए थे जब इनके कैप्टन बाहर बैठे थे, उनको रिवाइव करवाया था, परंतु अब चुनौती है टीम की लीड को दोबारा बिल्ड करने की। Made a successful pursuit there attempted by Kulvinder Dalal. Haryana 19 raid points, 3 tackle points and 4 others. 4 अदर हैं हरियाणा के, उसमें से 2 ऑल आउट के आए हैं, 2 यूपी का एक रेडर सेल्फ आउट हो गया था सुपर टैकल सिचुएशन में, 2 पॉइंट इनको वहां से मिले थे, और 2 ही पॉइंट की लीड अब यूपी के पास बाकी है। कैप्टन विक्रांत रेड में है, और बोनस के अलावा हरियाणा इनको कुछ भी पॉइंट देने की कोशिश भी नहीं कर रहे। They're not even trying to tackle him. That is the kind of domination that he has on the mental aspect of the UP defense. Now UP in a do or die situation. Haryana has to pick up points. Sushil there. सुशील ने ही अपनी टीम को वापसी करवाई है। नंबर 2 हरियाणा के कैप्टन सुशील वाकई में अपने नाम के अनुरूप खेले हैं। कहां लग रहा था कि यूपी एक बड़े अंतर से मैच जीत सकती है, क्या मिड लाइन क्रॉस की है। 2 पॉइंट डू और डाई रेड में हरियाणा के कैप्टन लेकर आए हैं। And can you believe it, Sunil? The men he has got out are the 2 corners. Both left and right corner have gone in a single raid. Dash attempted, but way too late. एक ही पॉइंट की लीड बाकी है, जो 3 मिनट पहले 10 पॉइंट की थी। हरियाणा की जबरदस्त वापसी है इस मैच में, और 18 पॉइंट 28 में से उनके अकेले खिलाड़ी, उनके कैप्टन सुशील लेकर आए हैं। Well, he does look like having a monster of a game, as 1 point separates these 2 sides, and UP feeling a lot of pressure thanks to some brave raiding by Haryana, especially Sushil, who's notched up 18 points out of the 28 that Haryana have scored. Ujjwal Nagar sharing raiding duties in the absence of Vikrant. Has been successful occasionally, and this time pulled back. Great team effort there, pulled back by Ronak. Shot number 6. लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लेफ्ट कवर ने ब्लॉक जरूर किया, लेकिन राइट कॉर्नर से नंबर 10 आकाश नैन ने सपोर्ट दिया, उसी कारण यह टैकल कामयाब हुआ। पहले हाफ में लगातार विफल होता हुआ उनका डिफेंस अब चल रहा है, और सुशील 18 रेड पॉइंट, कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। Looks like he's got plenty of gas in the tank. This time again a running hand touch. Make that 19. In the nervous 90s, short of a double century. And the team is 1 short of 30. In fact, they have touched 30. तो हरियाणा इस मैच में पहली बार लीड में आए हैं, दूसरी बार। हाँ, शुरू में 4-0 से आगे थे, उसके बाद लगातार यूपी को लीड मिली, और उन पहले 2 मिनट्स के बाद अब हरियाणा 1 पॉइंट से लीड में है।
और अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे दादा ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह यूपी की हॉकी की बात कर रहे थे। हॉकी के कुछ रिजल्ट्स हमारे दर्शकों को बताने बहुत जरूरी हैं क्योंकि 18 डिसिप्लिन खेले जा रहे हैं। And that is the under-17 boys gold medal match. Haryana defeated Punjab 1-0. The match is being played in the Maharashtra Hockey Association ground in Mumbai. So there you have it. Haryana picking up yet another gold medal. और ये कोई हैरानी की बात नहीं, पिछले कुछ सालों में हरियाणा हॉकी का नया हब बन के उभरा है। सरदार सिंह, संदीप सिंह, ये दो बहुत ही बड़े नाम हैं और लड़कियों की तो तकरीबन आधी टीम शाहबाद से खेला करती थी। तो न केवल रेसलिंग, बॉक्सिंग बल्कि क्या ये सुपर 8 है? 2 पॉइंट तो कंफर्म है विक्रांत के लिए। चलो इधर से वो बोनस की भी मांग कर रहे हैं। 1-1, नंबर 1 फर्स्ट, नंबर 6 2. Just the 2 points, UP. no bonus awarded by the umpire Aarti Bari, who was the closest to the action. But Vikrant once again coming to the party for UP. 9 रेड पॉइंट हो चुके हैं यूपी के कैप्टन विक्रांत के और उनके 2 पॉइंट की रेड ने यूपी को 1 पॉइंट की लीड में ला खड़ा किया। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई 2 कैप्टन्स की बन गई है। हरियाणा के कैप्टन सुशील रेड पर हैं, 19 रेड पॉइंट ले चुके हैं। उनके सामने है यूपी के कैप्टन और सुशील आउट। बड़ी कामयाबी यूपी के लिए। विसल बज गई थी, विसल बज गई थी। The whistle had gone from the umpire when Sushil's hand went over the center line, so definitely it will not count. But look at the team effort from UP. They know what a vital catch Sushil is for them. और थोड़ी देर पहले रवि ने नर्वस 90s कहा था सुशील के लिए। 19 रेड पॉइंट पर थे और उनके काउंटर पार्ट, उनके प्रतिपक्षी कैप्टन विक्रांत अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर है। सुपर 10 यानी कि रेडर द्वारा 10 पॉइंट लिया जाना। And certainly Vikrant has a lot of work to do, faced with 4 defenders, the 2x2 defenders. Vikrant goes back and Haryana were raiding through Rohit. रोहित नरवाल पूरा नाम सुनते ही आपको पता चलता है कि ये सोनीपत से हैं, तो भी प्रिसाइज कथूरा से हैं, जहां से आपको संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल जैसे खिलाड़ी मिलते हैं। प्रदीप की जर्सी का नंबर भी 9 है, इनकी जर्सी का नंबर भी 9 है। हाँ, प्रदीप बनने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रोहित को। Well, Ujjwal Nagar is also wearing shirt number 9 and has been providing great support to Vikrant for UP as the number 2 raider behind Vikrant. 9.5 मिनट अभी भी बाकी है रवि और 2 ही पॉइंट की लीड यूपी के पास है, जो एक समय हरियाणा की तरफ चली गई थी। अंदाजा लगाइए कि इस मैच का रिजल्ट आखिरी रेड से पहले तय नहीं हो सकता। Oh, definitely not. It would be a really brave man to call the result. Do or die raid now for UP and Vikrant taken out. Akash Nain it is. Goes for a massive block there. Low into the midriff and there is no chance for Vikrant to go anywhere but out. यहां भी डू और डाई रेड में है। एक ही पॉइंट की लीड यूपी के पास बची है और अगर हरियाणा को पॉइंट नहीं, हरियाणा को पॉइंट बिल्कुल मिलेगा। प्रतीक 1 पॉइंट ले आए, स्कोर 32-32 पर बराबर। Rather brave attempt there from Akash Nain it is of UP. Went very low but couldn't get a grip on the thighs. So point gifted away and we are back on level per 0-0. 32 all. मोहित बाल्यान, काफी कुछ रोहित बाल्यान से नाम इनका मिलता है। दोनों ही यू मुंबा की टीम का हिस्सा थे वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 में। Well, even if he shows 50% of the skills that Rohit Balyan has shown, he would definitely make a huge mark. But at the moment, UP need him big time because both their front men are off the court. बस फर्क यह था कि मोहित बाल्यान जर्सी नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं। रोहित बाल्यान लेफ्ट रेडर हैं। एक चीज कॉमन है, दोनों लेफ्ट के हैं, लेकिन एक रेडर एक डिफेंडर। और अगर यू मुंबा ने इनको न्यू यंग प्लेयर्स के पूल में से चुना था तो पता लगता है कि मोहित बाल्यान भविष्य के एक कबड्डी प्लेयर हैं जिस पे नजर रखनी चाहिए। Definitely don't forget the left corner position is Fazal Atrachali for U Mumba. So there he is playing as a substitute. And Ujjwal Nagar once again does the star turn, picks up a crucial point for UP, attempting a bonus. The ankle was offered and ran away. Ujjwal Nagar, the escape artist. प्रतीक
एक पॉइंट से पिछड़ रही है प्रतीक की टीम। बेस्ट होल्ड हुआ है और प्रतीक की जबरदस्त एस्केप। काउंटिंग हो रही है खिलाड़ियों की। क्या सुपर रेड है ये? Yes, it is. 3 men going off. Ujjwal Nagar can't believe it. Arti Bari is firm that Haryana boys have been told to step back and not argue. 3 points and it is a super raid. Turns the scores Haryana's way. क्या कमाल का दूसरा हाफ रहा है ये हरियाणा के लिए। पहले हाफ के 2 मिनट बाद तक वो 10 पॉइंट से पीछे थे, लेकिन यहाँ वेस्ट होल्ड एक बार तो लगा मजबूती से हुआ, लेकिन सपोर्ट जितनी जल्दी मोहित बालियान को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। नतीजा हरियाणा 2 पॉइंट की लीड में है और यूपी के पास 2 खिलाड़ी बचे हैं, यानी हरियाणा के पास मौका है यूपी को ऑल आउट देकर लीड और बढ़ाने का। Well, Haryana have suffered 3 all outs. UP only 1 chance for Haryana to get one more back, and a timeout, official timeout called. Possibly the coach, Haryana coach Vinod Kumar getting a green card for talking during the raid. कोचिंग ड्यूरिंग द रेड इज नॉट अलाउड। हमने वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 के प्लेऑफ में देखा था कि जब आपकी टीम का खिलाड़ी रेड कर रहा हो तो कोच पीछे से डिफेंस को इंस्ट्रक्शंस दे सकता था, यहां वो नहीं है। सुशील रेड पर है। सुशील एक खिलाड़ी सेल्फ आउट है और अब एक ही डिफेंडर बचा है। ऑल आउट बिल्कुल यूपी। सुशील ने अपने 20 पॉइंट का आंकड़ा भी छुआ है। उनकी टीम ने जबरदस्त वापसी की है। 3 बार ऑल आउट हुए, उसके बाद यूपी को 2 बार ऑल आउट दिया। Well, that's what champions are made of. The defender loses his footing, goes out of bounds, out of play, and then Sushil crawls back as the lead now 5 points. 39-33, 39-34 now the score. क्योंकि जैसे हम रिप्ले दिखा रहे थे रवि, उसी बीच प्रतीक गए और 1 पॉइंट ले आए, इसीलिए यूपी को 1 पॉइंट मिला है। कैप्टन सुशील क्या कमाल का खेले हैं। ये तो बिल्कुल अजय ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की याद दिलवा दी, जो एज अ कैप्टन, एज अ रेडर कमाल जिन्होंने किया है, या रोहित कुमार का आप नाम ले लें। Carrying the team on his shoulders is Sushil, doing just about everything possible that a raider can do, raiding fearlessly for his 22 points so far. और उनके सामने है विक्रांत, जिन्होंने खेल की शुरुआत बड़े सकारात्मक तरीके से की थी, लगातार 5 पॉइंट लिए थे और यहां बोनस की ट्राई की, बोनस नहीं मिला। विक्रांत अभी भी अपने सुपर 10 की तलाश में है। The side kick attempted there successfully by Prateek on Rohit Narwal. Mohit Balyan, beg your pardon. And things just falling apart for the UP defense in the last 5 minutes or so. इस मैच ने वीवो प्रो कबड्डी के कितने ही मैचेस की याद ताजा करवा दी है। जब आपके पास 8-8, 10-10 पॉइंट की लीड हो, फिर भी आप संतुष्ट होकर नहीं खेल सकते। यूपी एक समय लग रहा था कि 15-20 पॉइंट के मार्जिन से जीतेंगे, यहां तो अपनी हार को टालने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। टाइम आउट हरियाणा। Vikrant, there you see his Super 10 completed, but it's just not good enough. Vinod Kumar having a chat with the Haryana boys and also gives Kiran Pal an opportunity. Okay. UP number 5, Vikrant, the captain, has completed his Super 10, but Sushil has gone way better. Super 20. यूपी। पवन सेरावत, प्रदीप नरवाल जैसे खिलाड़ियों की याद दिलवा दी है आज हरियाणा के कैप्टन सुशील ने। और क्यों ना हो, जसवीर सिंह के गांव से हैं, पानीपत से हैं, बहुत बड़े रेड किसका है? और इनकी भी बात कर लें। विक्रांत, अच्छी बात यह है कि विक्रांत अकेले नहीं चले, यूपी की पूरी टीम ने सपोर्ट दिया। उधर सुशील अकेले चले, लेकिन अकेले दम पे टीम को वापस लेके आए और दूसरे हाफ में सुशील को हरियाणा की डिफेंस ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। All set to raid. Rohit Narwal. Tough one for UP now. It's all about holding your nerves. The defense has made a couple of elementary errors for UP, which allowed Haryana the opportunity to get back. And Sushil and his team just did not
flinch after that. और दूसरी तरफ हरियाणा ने दूसरे हाफ में अपने डिफेंस को कहीं ज्यादा बेहतर मुस्तैद किया है। पहले हाफ में हरियाणा के डिफेंस के पास सिर्फ एक ही पॉइंट था। Obviously, the coach Vinod Kumar must have read the riot act to them. You can't take things easy. Oh, and there you see what great defensive work Red there. out 1 point Haryana. Sachin Narwal it is. Shot number 10. Ankle hold and pulled him back single-handedly. That's what pure raw power is. नाम सचिन नरवाल, गांव वही जहां से संदीप नरवाल आते हैं और काम भी संदीप नरवाल वाला ही किया है। हरियाणा ने 5 टैकल पॉइंट लिए हैं जिसमें से 4 दूसरे हाफ में आए हैं। 7 अदर पॉइंट हैं जिसमें से 4 मिले हैं इनको ऑल आउट से, 2 मिले हैं एक सेल्फ आउट से जो सुपर टैकल सिचुएशन में हुआ था। लेकिन 27 रेड पॉइंट, 27 में से 20 अकेला ये रेडर लाया है। नंबर 2 उनका कैप्टन, उनका सुपरस्टार सुशील। I think at the moment Haryana solely depending on Sushil to pull off a win. Ujjwal Nagar at the moment fighting battle alongside Vikrant. The defense has not been able to give up the support, and this time once again the Haryana defense, and it is the same man, Sachin Narwal, with that iron grip on the ankle. बस एक बोनस पॉइंट जरूर मिला, लेकिन सचिन नरवाल राइट कॉर्नर पर हमें संदीप नरवाल की लगातार याद दिलवा रहे हैं। मजबूत एंकल होल्ड 2 बार किए उन्होंने। Well, tough one for Rohit, and can't get enough. It was a do-or-die Red raid. out 1 point Shot UP. number 9, Rohit there suffering as he had to pick up a point, had to take a few risks, and low tackle on the knee, very, very low. Nitin Pawar, it is successfully made. मोहित बालियान इस समय रेड में हैं, जो कि टीम की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं और यहां राइट कॉर्नर में आकर घेर लिए गए हैं। 1 मिनट बाकी है और हरियाणा की टीम ने, मोहित ने कम से कम बोनस लिया तो स्कोर डिफरेंस बढ़ाने नहीं दिया हरियाणा को। Well, score difference remains 5. Picks up the bonus and then wanted to pull the defense into the lobby. So one of those dirty tricks that Raiders often employ, run into the lobby and let the defenders follow them without contact. डर्टी या उनके अगर दृष्टिकोण से बात करें तो इंटेलिजेंट ट्रिक्स। हरियाणा इस मैच को जीतने की कगार पर है। हाफ टाइम तक वो 7 पॉइंट से पीछे थे, 8 पॉइंट से पीछे थे। ये लीड बाद में 10 पॉइंट की हो गई थी यूपी के पास। उसके बाद जब से हरियाणा ने वापसी की है, लीड बनाई है, यूपी को वापस नहीं आने दिया। उनके कैप्टन सुशील मिसाल बनकर खेले हैं और नाम याद रख लीजिए हरियाणा के सुशील का। ये खिलाड़ी हो सकता है अगले सीजन में वीवो पीकेएल में आपको देखने को मिले। Well, definitely another man to watch out for. That is Sachin Narwal, just having such a strong influence in the Haryana defense. Once again the iron grip on the ankle and gets it absolutely right. Sushil now in a super tackle situation, raiding, but I don't think he's going to take any risks now. None required as the lead is 6 points. इनफैक्ट अगर ये डू और डाई रेड भी होती तो भी 2 ही पॉइंट लूज होते रेड पॉइंट ना मिलने के कारण। तो सुशील आखिरी रेड पर पॉइंट भले ही ना लें, लेकिन तकरीबन अकेले दम पर इन्होंने अपनी टीम को आज वापसी करवाई है। 44 में से लगभग 50% पॉइंट हरियाणा के कैप्टन सुशील ने अकेले स्कोर किए हैं और उन्हीं के इस जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत हरियाणा ने एक समय 10 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद इस मैच को जीता है और एक स्टेटमेंट दी है क्यों हरियाणा को भारत में कबड्डी का पावर हाउस कहा जाता है। इस अंडर 21 टीम के प्रदर्शन से आप देख लीजिए। Winning start for Haryana and Chandigarh in Pune under 21 boys. UP and Delhi on the losing side after the first round of the league matches. 20 रेड पॉइंट सुशील ने इस मैच में लिए हैं। पहले हाफ में अकेले चल रहे थे, दूसरे हाफ में डिफेंस का भी इनको सपोर्ट मिला और 10 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद अगर हरियाणा की टीम जीतती है 44-48 से हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को हराया है ग्रुप ए के इस मुकाबले।